So there are three type of post transcriptional modification. Those are, again I'm repeating, splicing, capping, and polyadenylation. Splicing, capping, and polyadenylation are the three post-transcriptional modification that we are going to discuss in this session. So let's start with the video. Okay, so we now know that we have a pre-mRNA. Pre-mRNA. What is pre-mRNA? Pre-mRNA is basically the unprocessed mRNA which consist all the introns plus exons. ठीक है जी, जिस mRNA के पास बहुत सारा नॉन कोडिंग रीजन प्रेजेंट है, ठीक है जी, जिसकी कैपिंग नहीं हुई है, जिसकी पॉलीएडेनाइलेशन नहीं हुई है, दैट आरएनए इज नोन एज प्री mRNA. ठीक है ना, प्री mRNA यानी कि मॉडिफिकेशन से पहले वाला mRNA जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है जी. तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस इकट्ठे चलता है. ठीक है, इसमें चेंज मतलब अलग अलग से नहीं होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स. इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस आर एक्सक्लूसिव इन नेचर. दे अंडरगो डिफरेंटली. ठीक है जी, ऑन डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पर होते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. बट इफ वी कंपेयर it with prokaryotes, then prokaryotes has the tendency to perform transcription and translation simultaneously. Okay, so जो हमारे पास prokaryotes के अंदर जो 3 प्राइम एंड होता है mRNA का, mRNA का 3 प्राइम एंड होता है, वो उसकी जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, राइबोसोम अटैच टू साइन डलगार्नो सीक्वेंस नियर टू 5 प्राइम एंड ऑफ द बिगिन ट्रांसलेशन. अब ये साइन डलगार्नो सीक्वेंस कौन से हैं? These are the sequences जहां पर जो राइबोसोम्स हैं वो बाइंड करते हैं. ठीक है जी, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है. ये 5 प्राइम एंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है जी. ओके, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स का जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइम और स्पेस के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है जी. In case of eukaryotes, transcription is undergoing in nucleoplasm and translation is going in cytoplasm. But in case of prokaryotes, there is no nucleus, as we all know, and the transcription and translation both go simultaneously in cytoplasm only. Okay, so there is a same time and same space in case of prokaryotes, but a different time and different space in case of eukaryotes. So now you know the reason behind it. So further adding, ट्रांसक्रिप्शन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर होती है. वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया है. तो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन व्हाट डू वी गेट? वी हैव अ unprocessed pre-mRNA. After the transcription process, what do we have? We have a non-processed pre-mRNA which contains all the introns as well as exons. So as we have discussed earlier, that introns are the known coding sequences present in mRNA. What are the known coding sequences? Known coding sequences are the sequences which do not participate in translation process and which do not involve in formation of any type of protein. Okay, so we do not have any interest in these introns. Okay, we do not have any kind of interest in these introns, and we tend to remove these introns. We want that these introns should be removed from our mRNA, and that process is called splicing. What is splicing? Splicing is the process of removing introns from the messenger RNA so that we get only coding sequences present in our mRNA. ओके, सो ये बातें जो हैं हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर. तो अब बढ़ते हैं आगे हमारे जो आज का लेक्चर है. चलिए जिसके इसके ऊपर फोकस करते हैं कि जो हमारा mRNA है. तो अब लेट मी ड्रॉ mRNA फॉर यू बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल you should have an image for it. Okay, so here we have a single chain of mRNA. ठीक है जी, mRNA सिंगल स्ट्रैंड है हमारा. ओके, सो हियर वी हैव इट. और उसके अलावा हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इसका 5 प्राइम एंड है. ठीक है जी, यहाँ पर प्रेजेंट है इसका
5' end, sorry, okay, here is the 5' end, and on the other side of course there will be the 3' end. यहाँ पर प्रेजेंट होगा इसका 3' end. Okay, so here we have is 3' end. So 5' end and 3' end दोनों एंड प्रेजेंट हैं. और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा जो हमारा mRNA है ये कुछ इस तरह का दिखेगा हमको, और इसके ऊपर बहुत सारे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे एज वी ऑल नो. ठीक है जी, सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे. लेकिन एक चीज मैं आपको बतानी चाहूंगा कि जो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है जी, जो सीक्वेंसेस हैं हमारे पास, तो वो कौन से होते हैं. तो यहाँ से जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है बिटवीन दीज टेक्स्ट, जो मैं ये मार्क्स के बीच का जो सीक्वेंस है इसका नाम बताना चाहूंगा आपको. इसका नाम होता है बेटा, इस रीजन का नाम है हमारे पास, ओके, इस रीजन का नाम होता है इनिशिएशन कोडॉन. ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन. ओके, सो इनिशिएशन कोडॉन जो है वो इस रीजन का नाम है हमारे पास, जो ये मैंने 2 मार्क्स के बीच वाला जो रीजन आपको बताया है. सो दिस इज द नेम. जो इतना रीजन है mRNA का 5' एंड के ऊपर, ये कौन सा रीजन है, इनिशिएशन कोडॉन. इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है जी, इनिशिएशन कोडॉन यहाँ से, और उसके बाद आएगा हमारे पास ट्रांसक्राइब्ड रीजन. ठीक है जी, फिर कौन सा रीजन आता है, ऐसा रीजन जिसकी ट्रांसलेशन होगी, ऐसा रीजन जिसकी ट्रांसलेशन होती है. और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होगा ये 2 मार्क्स के बीच में, यहाँ पर जो सीक्वेंस प्रेजेंट है ये 2 मार्क्स के बीच का बता रहा हूं मैं. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस रीजन इज नोन एज, ओके, सो दिस रीजन ऑन द 3' end साइड, ठीक है जी, दिस रीजन इज नोन एज UTR. UTR. Why UTR? UTR stands for untranslated region. ये है जी अनट्रांसलेटेड रीजन. ठीक है जी, अनट्रांसलेटेड रीजन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है जी, तो हमारा जो mRNA है रफली कुछ इस तरह का दिखेगा हमको. आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारे पास प्री mRNA बना है, तो ये हमारे पास क्या चीज है, दिस इज द बेसिकली प्री mRNA. ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्री mRNA है जो फॉर्म हुआ है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. तो ऑन द 5' साइट आप क्या देख रहे हैं, क्या प्रेजेंट है, इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट है. उसके बाद यहाँ पर जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, इनिशिएशन कोडॉन और UTR रीजन के बीच वाला जो सीक्वेंस है वो वाला सीक्वेंस है जिसकी ट्रांसलेशन होगी, जिसकी ट्रांसलेशन होगी. ठीक है जी, अनट्रांसलेटेड रीजन ऐसा रीजन होता है जिसकी ट्रांसलेशन नहीं होती है. ठीक है जी, और ये प्रेजेंट होता है 3' एंड के ऊपर. ठीक है, 5' साइड के ऊपर भी होता है UTR रीजन. ठीक है जी, जो रीजन इस मार्क के लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा आपको, इनिशिएशन कोडॉन के लेफ्ट साइड पर जो रीजन दिख रहा है, जो ये मैंने छोड़ा है यहाँ पर, दिस इज बेसिकली द UTR रीजन ऑफ 5' साइड. तो अनट्रांसलेटेड रीजन जो होते हैं, यानी कि mRNA का वो हिस्सा जिसकी ट्रांसलेशन ना हो, तो ये रीजन्स 5' साइट के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे और 3' साइट के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड नो दैट इसके 5' साइट से, जो mRNA की 5' साइट है, वहां पर इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट है. इनिशिएशन कोडॉन का मतलब है कि ये वो साइट है जहां से ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होगा. ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है पूरा हमने अभी स्टडी नहीं किया है, बस मैं आपको साइट बता रहा हूं mRNA की जहां से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ठीक है जी, और उसके बाद 3' साइट के ऊपर आकर के एक टर्मिनेशन कोडॉन प्रेजेंट होता है. टर्मिनेशन कोडॉन के ऊपर ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है आकर के. 3' एंड के ऊपर ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है. 5' के ऊपर इनिशिएशन कोडॉन है जहां से शुरू होता है. 3' के ऊपर टर्मिनेशन कोडॉन है जहां पर खत्म होता है. ठीक है जी, तो इस तरह का दिखता है कुछ हमारा mRNA. तो अब आगे बढ़ते हैं कि इस mRNA के अंदर हमको कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो करनी है. तो लेट्स मूव विद द मॉडिफिकेशंस दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर mRNA. सो लेट्स फॉरवर्ड विद दिस स्लाइड. अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड को लेकर के हम.
चलिए जी, अब पहली मॉडिफिकेशन है दैट इज 5 प्राइम कैप। 5 प्राइम कैपिंग करनी है। अब ये कैपिंग का मतलब कैसे होगा, कैसे हम जो कैप है उसको ऐड करेंगे, तो वो आप एक सेंट्रल आइडिया, एक ब्रीफ आइडिया लेंगे मुझसे पहले, समझेंगे कि कैप होगी कैसे। ठीक है जी, तो लेट मी ड्रॉ अगेन कि जो हमारे पास यहाँ पर कैप होगी वो किस तरह की दिखेगी mRNA के ऊपर। ठीक है जी, ओके, सो लेट्स सपोज के ये रहा हमारे पास mRNA स्ट्रेट सिंगल स्ट्रैंडेड, और mRNA मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, और उसके जो 5 प्राइम एंड है, ऑलवेज रिमेंबर जो कैपिंग होनी है वो 5 प्राइम एंड के ऊपर ही होगी। तो 5 प्राइम एंड के ऊपर हम क्या कर देंगे, एक जो कैप है, एक जो कैप है उसको ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है जी, तो 5 प्राइम एंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर इस तरह से कैपिंग जो है वो हो जाएगी। तो ये जो कैप हम 5 प्राइम एंड के ऊपर ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी, 5 प्राइम एंड के ऊपर जो ये हम कैपिंग कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करते हैं कैपिंग 5 प्राइम एंड के ऊपर। ठीक है जी, और जो हमारा 3 प्राइम एंड है, ठीक है जी, जो हमारा 3 प्राइम एंड है, इसके ऊपर हम लोग एक और चीज ऐड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेल। टेल, ठीक है जी, और वो टेल बनी हुई होती है एडेनिन सीक्वेंसेस के साथ। वो जो टेल है वो किसके साथ बनी हुई है, एडेनिन सीक्वेंसेस के साथ बनी हुई है। टेल के ऊपर बेसिकली ऐड होते हैं हमारे एडेनिन सीक्वेंसेस, मल्टीपल ए प्रेजेंट होगा टेल के ऊपर। ठीक है जी, तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग मल्टीपल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है जी, जो 3 प्राइम एंड के ऊपर प्रेजेंट होंगे, हमेशा मल्टीपल ए सीक्वेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और 5 प्राइम के ऊपर कैप प्रेजेंट होगी। ठीक है जी, mRNA जो है वो हमारे पास, जो पिछला डायग्राम हमने स्टडी किया था, उस डायग्राम के अंदर हमने mRNA देखा था कि आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन वो किस तरह का दिखेगा। ठीक है जी, तो अब हम कर रहे हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशंस। तो मॉडिफिकेशन करते वक्त जो पहली मॉडिफिकेशन हम करते हैं वो करते हैं कि 5 प्राइम के ऊपर एक कैप को ऐड कर देना। 5 प्राइम रीजन के ऊपर जब हम एक कैप ऐड कर देंगे, उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा होगा कि जो कैप है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करवाने में हेल्प करती है, और कैप की वजह से mRNA ज्यादा स्टेबल रहता है, किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो वो केमिकल ही न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बना हुआ है तो रिएक्टिविटी है ऑफ कोर्स, लेकिन कैपिंग की वजह से वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हमको मालूम है कि जो हमारा mRNA फॉर्म हुआ है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म हुआ है, and we need to transport that mRNA from nucleus to cytoplasm, specifically in cytoplasm राइबोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियस में से निकालकर उसको लेकर के जाना है राइबोसोम्स तक, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो इतना जो हमारा पाथ है, इसने ट्रेवल करना है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो ड्यूरिंग दिस पाथ ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट ना करे, और इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सेफ रहें, वो डिग्रेड ना हो, इस वजह से हम लोग कैपिंग करते हैं। ठीक है जी, इस वजह से 5 प्राइम एंड के ऊपर हम लोग कैप कर देते हैं, कैपिंग कर देते हैं, ताकि जो इसका इनिशिएशन कोडॉन है, ठीक है जी, वो डैमेज ना हो, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो इजिली स्टार्ट हो सके, और ये लीस्ट रिएक्टिव रहे, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट ना करे, और इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सेफ रहे, वो डीजेनरेट ना हो। ठीक है जी, तो ये सिग्निफिकेंस है कैपिंग का, इस वजह से हम लोग कैपिंग करते हैं। और दूसरी रही बात हमारे पास राइट साइड के ऊपर 3 प्राइम एंड के ऊपर टेलिंग की। ठीक है जी, तो ये पॉली, इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। पॉली का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब एडेनिन, टेल, पॉली ए टेल। mRNA के साथ हम लोग पॉली ए टेल क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे पॉलीएडिनाइलेशन। और ये करते क्यों है पॉलीएडिनाइलेशन, जो ये पॉली ए टेल है, ये इसलिए की जाती है ताकि जो mRNA जब बाहर निकल कर जाए न्यूक्लियस में से और साइटोप्लाज्म में चला जाए, तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो इस पॉली ए टेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, इस पॉली ए टेल को पहचानते हैं, जिस वजह से जो मैसेंजर आरएनए है उसके पीछे वाली ये पॉली ए टेल है, ये पॉली ए टेल बाइंड कर जाती है राइबोसोम्स की लार्जर सब यूनिट के साथ। ठीक है जी, राइबोसोम्स की लार्जर सब यूनिट के साथ पॉली ए टेल बाइंड कर जाएगी, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जितनी भी हमारी मॉडिफिकेशंस होती हैं, इनका सेंट्रल आइडिया होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को इजी करना। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप हर एक
मॉडिफिकेशन के सिग्निफिकेंस में ऐड कर सकते हैं कि इट सपोर्ट्स ट्रांसलेशन, ठीक है जी। और वो किस तरह से सपोर्ट करता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पॉलीएडेनाइजेशन जो प्रोसेस है, जो पॉली ए टेल है, अगर पॉली ए टेल ना हो तो मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो बाइंड भी नहीं करेगा, जिस वजह से ट्रांसलेशन शुरू नहीं हो पाएगी। तो पॉली ए टेल इज द साइट वेयर राइबोसोम बाइंड विद मैसेंजर आरएनए, जहां पर राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करता है, ये वो साइट है, ठीक है जी। कैपिंग का सिग्निफिकेंस आपको पता लग गया है कि ये मैसेंजर आरएनए को स्टेबलाइज करके रखेगा और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो अब हमारा काम बचा है, जो आपको मतलब पता लग गया कि मॉडिफिकेशन करवाते क्यों है, ठीक है जी। 5 प्राइम कैप, 3 प्राइम टेल एंड, और एक जो बच गया सेंटर में क्या करना है, दोनों एंड्स का तो पता लग गया, 5 प्राइम एंड पे कैप होगी, 3 प्राइम एंड पे टेल होगी, लेकिन सेंटर में क्या करना है, सेंटर में होगी स्प्लाइसिंग। जो इंट्रॉन्स हैं, इंट्रॉन्स आर द सीक्वेंसेस, इंट्रॉन्स आर द सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट है। अब उन इंट्रॉन्स को, उन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो आप देख रहे हैं इस प्रोसेस की ब्यूटी के पूरे एमआरएनए के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है जी। 5 प्राइम एंड के ऊपर कैप लगा दी, 3 प्राइम के ऊपर टेल लगा दी, और जो सेंट्रल पार्ट है उसका जो इंट्रॉन्स है वो सारे रिमूव करवा दिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट क्या होगी, कैपिंग, राइट पे होगी टेलिंग, ठीक है जी, सेंटर में होगी स्प्लाइसिंग, ठीक है जी। तो इस तरह से जो हमारी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं वो काम होता है। अब समझते हैं कि ये कैप लगती कैसे है, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है ये कैप को ऐड ऑन करने के लिए। चलिए जी, अब ये जो प्रोसेस है इसकी डिटेल हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारे पास जो कैपिंग का काम है, ठीक है, ये कैप, पहली बात तो ये कैप जो है ये बनी किससे होती है ये पता होना चाहिए। जो ये कैप है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी। कैप जो है वो न्यूक्लियोटाइड के साथ ही बनी हुई है, वो अलग से कोई और मटेरियल नहीं है, वो न्यूक्लियोटाइड ही है। जो कैप है वो न्यूक्लियोटाइड ही है। जैसे टेल क्या थी, पॉली ए थी, यानी कि मल्टीपल एडेनिन के साथ एक टेल बनाई थी, उसी तरह से जो कैप बनेगी वो भी न्यूक्लियोटाइड के साथ ही बनेगी, ठीक है जी। और 5 प्राइम एंड के ऊपर बनेगी, ठीक है जी। कैप लगाने के बाद हम उस एंड को उस एंड के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी ऐड कर देते हैं, एंड द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इज नोन एज मिथाइलेशन, ठीक है जी। तो 5 प्राइम के ऊपर कैप लगाई और कैप लगाने के बाद मिथाइलेशन करवानी है, ठीक है। अब मिथाइलेशन से क्या होता है, मिथाइलेशन, अगर कोई न्यूक्लिक एसिड मिथाइलेटेड है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ये बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आएगी आगे जो फर्दर यूनिट है। अगर कोई न्यूक्लिक एसिड मिथाइलेटेड है, किसी न्यूक्लिक एसिड के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो न्यूक्लिक एसिड रिएक्ट नहीं करता है, वो साइलेंट होता है, एक तरह से आप कह सकते हो इनर्ट होता है, ठीक है। उस टाइम के ऊपर अगर कोई न्यूक्लिक एसिड मिथाइलेटेड है, अगर न्यूक्लिक एसिड का कोई पार्ट मिथाइलेटेड है, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तब वो रिएक्शन नहीं देगा किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। जैसा कि हमने सीखा था, मैंने बताया था आपको कि अगर कैप लग जाएगी तो वो स्टेबलाइज कर देगी, और जो आरएनए, जो एमआरएनए है वो रिएक्ट नहीं करेगा। ये रीजन है उसके बिहाइंड, कि जो मिथाइल ग्रुप है वो प्रिवेंट करता है रिएक्टिविटी को, ठीक है जी। चलिए जी, और जो मिथाइल ग्रुप है ये बेसिकली, अच्छा एक चीज मैं आपसे आपको बोल रहा हूं कि रिएक्ट नहीं करेगा किसी और मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या आप कोई मॉलिक्यूल गैस कर सकते हैं जिसके साथ न्यूक्लिक एसिड रिएक्ट करता हो? एनी वाइल्ड गैस फ्रॉम द थ्री ऑफ यू, कोई भी गैस बताइए कि हाँ जी ये मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है जिसके साथ न्यूक्लिक एसिड रिएक्ट करे। साइरिल, हर्ष एंड हरप्रीत, ओके। तो अच्छा, आपने एक एंजाइम का नाम जरूर सुना होगा, बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th, दैट एंजाइम इज नोन एज अ न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज एंजाइम। तो न्यूक्लिएज एंजाइम जो होती है, न्यूक्लियस एंजाइम का काम है न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करवाना, ठीक है। पता लग गया, न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड कराने का काम कौन करती है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लिक एसिड अगर कोई बना है, वेदर इट इज डीएनए और आरएनए, उसको सबसे ज्यादा खतरा किससे होगा,
न्यूक्लियस से होगा। ठीक है जी। तो अगर डीएनए या आरएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये मिथाइल ग्रुप न्यूक्लियस को न्यूट्रलाइज कर देता है और न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को डीजेनरेट नहीं कर पाती है। तो इसी वजह से अगर हमने अब एमआरएनए बनाया है, एमआरएनए ने न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाना है, तो उसको कहीं तो न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है जी। और न्यूक्लियस अगर मिल गया तो न्यूक्लियस कर क्या देगा, न्यूक्लियस उसको डीजेनरेट कर देगा, डिग्रेड कर देगा, जिस वजह से वो एमआरएनए खराब हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। इस वजह से हम स्मार्टली काम करते हैं, हमारी बॉडी जो स्मार्टली काम करती है, जैसे ही एमआरएनए बनता है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड लगाते हैं और उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं ताकि कोई भी न्यूक्लियस इसको डाइजेस्ट या डिग्रेड ना कर पाए। अब आपको पूरा पता लग गया है कि कैपिंग करते क्यों है। चलिए अब अगली बात करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज, जो कैपिंग है ये कहां पर होती है? कैपिंग टेक्स प्लेस रैपिडली आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के बाद कैपिंग का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे एमआरएनए अलग होता जाएगा डीएनए से, जो एमआरएनए का पार्ट अलग हो रहा है वो 5 प्राइम पार्ट है, हम सभी को पता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 5 प्राइम साइड से स्टार्ट हो रही है। तो पहला जो बनेगा एमआरएनए की साइट वो 5 प्राइम बनेगी। ठीक है। और जब वो अलग होगी डीएनए से तो जो 5 प्राइम साइट है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जो कैपिंग है वो लग जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट चीज हम करते हैं, ओके, सो लेट्स स्टडी द प्रोसेस कि किस तरह से ये जो चीजें हैं ये काम करती हैं। तो लेट मी हाईलाइट दिस थिंग्स फॉर यू। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, नीचे से स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो ये दिख रहा है आपको 5 प्राइम पी पी पी, जस्ट अ मिनट। ओके, तो जो ये यहाँ पर बेटा साइड दिख रही है आपको 5 प्राइम ट्रिपल पी, उसके बाद एन, फिर पी, एन पी एन पी एन पी, ये क्या है? मेरे को पता है आपको समझ में आ रही है। 5 प्राइम जो है यहाँ पर ये दिख रहा, ये पता लग रहा है आपको, दिस इज फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, तो दिस इज ट्राई फॉस्फेट और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है, सो दिस इज न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। ठीक है जी। उसके बाद फिर से पी यानी कि फॉस्फेट, फिर से न्यूक्लियोटाइड, फिर से फॉस्फेट, फिर से न्यूक्लियोटाइड, फिर से फॉस्फेट, फिर से न्यूक्लियोटाइड, यानी कि फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। और यस, यू आर राइट, यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये जो चेन है ये एमआरएनए की है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एमआरएनए के ऊपर हम कैपिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो जो ये चेन है बेटा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है और यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए की चेन है। और इसके ऊपर हम ये देखेंगे कि अब कैप ऐड कैसे करती है। ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट थिंग, अब अगली बात क्या है कि होगा क्या कि ये 3 फॉस्फेट ग्रुप में से, आपको पता है ना बेटा कि 5 प्राइम साइड जो होती है उसके ऊपर फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो 3 प्राइम साइड होता है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जो ये फ्री फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर, इसका जो एक फॉस्फेट है वो रिमूव हो जाएगा। इसका एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, 2 बच गए यहाँ पर, बाकी सारा एज इट इज आइडेंटिकल है। ठीक है। अब एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आएगा जिसका नाम है जीटीपी, गुआनिल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, जीटीपी। अब क्या होगा जी, ये जो जीटीपी है ये एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है जी। ये आया और यहाँ पर ये एक एंजाइम है जिसका नाम है गुआनिल ट्रांसफरेज। गुआनिल ट्रांसफरेज, गुआनिल ट्रांसफरेज ने क्या करना है, ये जो गुआनिन न्यूक्लियोसाइड है, ये जो गुआनिन न्यूक्लियोसाइड है इसको रिमूव कर देना है। ठीक है जी। यानी कि ये जो यहाँ पे जीटीपी था, जीटीपी था, इसका होगा क्या, यहाँ से 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे। ठीक है जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फॉस्फेट रिमूव हो गए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये जो जीटीपी था ये जाकर के लग गया इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ। ये वही वाली चेन है जो ये नीचे प्रेजेंट थी यहाँ पर, ये यहाँ पर गुआनिन लग जाएगा, गुआनिन लग जाएगा। अब बेटा एक बात और समझनी है हमको, वो बात ये है कि जब हम रेप्लिकेशन करते थे या ट्रांसक्रिप्शन करते थे, वहां पर हमें एक बात सीखी है बड़े अच्छे से
कि जब हमने एक चेन सिंथेसाइज करवानी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, तो जो बॉन्ड होगा, एक चेन के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है जी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, और वो बॉन्ड बनेगा शुगर के बीच में और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और अगर दो चेन्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म करवाने हैं तो वो होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर तो ये एक ही चेन के अंदर हमने क्या करवाया है? एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाया है। तो क्या जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना, तो क्या जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है? द आंसर इज नो। ये वाला बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या कह लो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड नहीं है। ये डिफरेंस है इसमें, समझना इस बात को। क्यों नहीं है जी, वो मैं आपको स्ट्रक्चरली शो करवाता हूं आगे। ठीक है, अभी के लिए समझिए कि यहाँ पर क्या ऐड हो गया? एक गुआनिन जो है वो ऐड हो गया इस न्यूक्लियोटाइड चेन के साथ। तो ये रही हमारे पास जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उसके साथ गुआनिन जो है वो ऐड हो रखा है, और इस गुआनिन के साथ एक और मिथाइल ग्रुप हमने क्या करवा दिया? ऐड करवा दिया। यही आइडिया था कैपिंग का, कि न्यूक्लियोटाइड की कैप लगाओ और उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दो। तो न्यूक्लियोटाइड कौन सा लगा? गुआनिन, और हमेशा गुआनिन ही लगेगा। गुआनिन लगा और उसके ऊपर कैप लग गई मिथाइल ग्रुप की। तो कौन सी एंजाइम है जो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच करवाएगी गुआनिन के साथ? तो दैट एंजाइम नेम इज गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज इस एंजाइम का नाम है, जो इस गुआनिन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच करवा देगी। ठीक है जी, और उसके बाद हमको एक और भी चीज याद रखनी है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो एक तो लगेगा गुआनिन के साथ और एक लगेगा पहले न्यूक्लियोटाइड के साथ, जो हमारी एमआरएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड था। ठीक है जी, गुआनिन तो बाद में लगाया ना हमने, ये जीटीपी तो बाद में आया है। ठीक है, ये जीटीपी तो बाद में ऐड ऑन हुआ है यहाँ पर आके। ठीक है जी, ये न्यूक्लियोटाइड पहला था जो एमआरएनए का था। एक तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगेगा और एक लगेगा ये कैप के साथ। तो कैप कितनी है? जितना रीजन मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस रीजन इज कैप विच इन्वॉल्व्स जीटीपी एज वेल एज मिथाइल ग्रुप। दिस इज द कैप। ठीक है जी, अच्छा अब ये तो आपने देख लिया चेन वाइज, यहाँ पर बड़ा इजी है समझना। ठीक है, अब इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, चलिए वो समझ लेते हैं। वो क्या चीज है? ओके, ओके, सो यहाँ पर फोकस करना बेटा। लेट मी हाईलाइट दिस। ओके, सो यहाँ पर फोकस करना। तो ये तो था हमारे पास यहाँ तक जो है ये एमआरएनए है। एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसके शुगर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। ये था जीटीपी। ठीक है, ये जीटीपी था जो अलग से ऐड ऑन किया हमने। ठीक है जी, क्या है जीटीपी के अंदर? जीटीपी के अंदर ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है। गुआनिन इज अ प्यूरिन और अ pyrimidine? गुआनिन इज अ प्यूरिन। ठीक है जी, एडेनिन एंड गुआनिन आर प्यूरिन्स। तो प्यूरिन्स आर ऑलवेज डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर प्यूरिन का है केमिकली। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर प्यूरिन का है। तो अगर मैं इसकी नेमिंग स्टार्ट कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इसकी नेमिंग स्टार्ट कर दूं तो दिस इज फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, तो 9 प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, और जो ये 7th पोजीशन है, 7th पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसी वजह से आपने वो नाम देखा था एंजाइम का, 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज, यानी कि गुआनिन के 7th पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाली एंजाइम। ठीक है ना, ये 7th पोजीशन के ऊपर ये क्या लग गया है? मिथाइल ग्रुप ऐड ऑन किया है हमने। ठीक है जी, 7 मिथाइल ट्रांसफरेज, जो गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज है, उसका ये काम है मिथाइल ग्रुप को यहाँ ऐड करवाना। ठीक है, अच्छा जो बॉन्ड की मैं बात कर रहा था वो देखते हैं अब। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? ये तो था हमारे पास नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के अलावा ये रही हमारे पास पेंटोज शुगर। ठीक है जी, पेंटोज शुगर, और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। ये प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप।
ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप भी जो है वो प्रेजेंट है। अब नाउ नेक्स्ट थिंग समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, आप देखेंगे कि जो जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है N1, ये N1 है मैसेंजर आरएनए का, इसका शुगर मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है। ओके, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इसका शुगर मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, ये रहा शुगर मॉलिक्यूल, और ये रहा उसका पहला न्यूक्लियोटाइड, यानी कि आई एम सॉरी, दिस इज नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, तो ये कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है जी। और ये भी नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये भी कंप्लीट क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो शुगर के बीच में और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बनता है, ये हमने सीखा हुआ है, ठीक है। वो शुगर के बीच में और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बनेगा, ये हमने सीखा हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए, जीटीपी और N1 के बीच जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच में हो रहा है। सो दैट इज द अनयूजुअल बॉन्ड। ये बॉन्ड अनयूजुअल बॉन्ड है। इस बॉन्ड का नाम है इस बॉन्ड का नाम है 5 प्राइम 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज, ठीक है जी। इसका क्या नाम है, 5 प्राइम 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज, ये इस बॉन्ड का नाम है। नॉर्मली कौन सा होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नॉर्मली ये बॉन्ड होता है। लेकिन यहां पर कैपिंग रीजन में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सा है, 5 प्राइम 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज, ठीक है जी। तो ये था बेटा बात जो मैंने आपको समझानी थी। और अब नेक्स्ट थिंग के ऊपर फोकस करते हैं, जो हमारे पास, हाँ तो बस इतना काम था। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने समझ लिया है कि किस तरह से जो कैपिंग का काम है वो हम करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फिर से रिवाइज करना है एक बार, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं इसके लिए, समझते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास एक mRNA। mRNA का जो 5 प्राइम एंड है वहां से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करवा देंगे, 2 फॉस्फेट ग्रुप बच जाएंगे। फिर वहां पर आएगा जीटीपी, जीटीपी अटैच हो जाएगा इस mRNA चेन के साथ 5 प्राइम एंड के ऊपर। और 5 प्राइम एंड के ऊपर जब जीटीपी अटैच हुआ होगा तो वहां पर ग्वानिन के जो ग्वानिन नाइट्रोजन बेस है उसके 7th पोजीशन के ऊपर हम क्या ऐड कर देंगे, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे। कौन सी एंजाइम करवाएगी, ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेस। और उसके बाद एक और मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड 1 के ऊपर ऐड ऑन होगा जो कि मैसेंजर आरएनए का है। तो this was all about capping, and we will discuss about polyadenylation in tomorrow's lecture. So till then, please send me your queries